payment of fees, so there is no payment of remuneration by the seniors to the juniors. And the third stage is there is fees, but there is no case. Because the senior or the learned senior has to sit in the office and he will be getting fees, but there are no need of going to the court. If that be the case, as far as junior advocates are concerned, considering an aspect also, because now it is 5-year, this is purely a professional course. And the legal education also, I would like to highlight a point to the Honorable Minister. Even now, 2 systems of education is going on in our country. 3-year LLB course as well as 5-year LLB course. So the legal education has also to be made uniform. Because the same profession, same practice, same thing they are doing after the education. That has also to be taken into consideration. And another point which I would like to make is, this is a social legislation. What is the contribution of the government of India, or what is the contribution of the state government? In the State Welfare Fund Bill, there is the contribution by the state government. State government is also contributing to the welfare fund. We are having in Kerala, we are having more than 18 welfare legislations. Almost all the legislation, the state government is also having a contribution to the particular fund, so that some benefit will be given to the members of the fund. So here, the Home Secretary and the Law Secretary of the particular appropriate government is there. They are a part and parcel of the fund, but the contribution of the state government or the appropriate government is nil. So that should also be taken into consideration. The amount has to be modified, and with these words, I would congratulate the minister in putting up a bill or bringing up a bill in principle to have a legislation for a particular profession is concerned. And also I hope that in future, by experience, in future or after studying the experience which we have got from the state, this will be modified. With these words, I support the bill. Thank you. सिंगल साहब आपको कुछ सिंगल बात कहनी है? In fact, I could even withdraw my name, but just 2 points, and they are just bullet points. Number one, as you said, the Special Clauses Act includes female with whenever there is this. If that were not the case, no woman could be punished under the IPC because there is no she in that. Now, but actually, if you spell SHE, HE comes within she. It should be the other way around. I bet that would be interesting. Rules will have to be framed so that the system is streamlined at till down the Mufassil level. That's one point. And the second point, the other 2 points have already been said by my friend Ravi about life insurance and medical insurance. Group insurance schemes will provide a very nice way of distributing the funds and not putting the weight on the welfare fund itself. So if the group insurance could be encouraged, they should at least have the contributions to manage group insurances. The next thing, if they could, now there are computer institutes almost in every district. Lawyers cannot afford a library, even at least the new ones. So they should be given facilities by fixing up some kind of a contract with some local computer institute, which has the software for the legal fraternity, and the lawyers could then make use of that, and they need not have to spend more money on the on books or create a library for themselves. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Minister. Madam, I'm extremely grateful to the honourable members of the House who have in a large measure supported this legislation and also made some very valuable suggestions. I'll just respond briefly to some of the points which have been raised. But before I do that, Madam, a very serious charge was made against the legislative process that there is a gender bias. Yes. So the rules of construction in the General Clauses Act actually inherently indicate that when they say that words importing the masculine gender shall be taken to include females. So the rules of construction itself on all legislation itself from the very beginning, and we have been legislating on basis of this. All legislation has been on basis of this construction in the General Clauses Act that masculine always includes the females. But how old is it? 1897. So a lot of water has flown under the bridge. So the high time you better change it. There is a 3-letter word which has H and E in it. Even otherwise.
Madam, one of the very significant points which was made by General Roy Chaudhary, he actually questioned the rationale behind this bill. And before this Honourable House takes a vote on this bill, I must endeavour to explain what a rationale behind this legislation is. You have a group of organised professionals without any element of social security, and you can take it from the experience of some of our colleagues here who are far more experienced in the legal profession than me, that a very large number of them are anything but affluent. In fact, if you travel down to the districts and the tehsils in the country, you will find a number of them who have actually no savings to rely back on. And the rationale behind this legislation is the same rationale which is behind any social security scheme. Why do we say let's have provident fund, let us have gratuity, let us have group insurances in cases of any section of society? We have it because these are amounts which belong to that section of the society, but there is a facilitating legislation, and that legislation facilitates that that amount is collected and is secured on their behalf, so that at an appropriate time it comes to the benefit of that section. That is the real rationale. And that is when some of the members, Mr. Nariman and others who supported this legislation, said, this is an amount which is going to be largely contributed by the advocates themselves. The general doubted whether they would themselves not contribute it and compel their clients to do it. There is also a corresponding penal provision. If you did that, you lose the benefits of the membership itself. So we've tried to ensure and make sure that there is no legal compulsion that anybody can be compelled to pay this as far as the litigants are concerned, and this is an amount which the lawyers themselves would have to pay. The second, madam, a question raised by some members, and I think I must once again explain, I endeavored to explain it at the beginning, because the success or failure of this actually depends upon three factors. The one factor which I indicated, that some of the state legislations did not have an element of compulsion in it in becoming members. And therefore, if some became members and some didn't become members, the schemes did not succeed. The second, we have tried to make that changes in this legislation by making membership compulsory. The second question is as to what the sources of fund would be, how large would be the corpus, and what are the kind of benefits that the members of the bar would be entitled from it. Now, if we have a fair reading of this legislation, there are several sources of funds. And these several sources of funds are not related, as Mr. Sibal mentioned, to merely membership of a bar association. Whether the Supreme Court Bar Association has 200 or 500 or 1,000 active members is completely irrelevant. There are different sources, and the principal sources include amounts which will be contributed by the Bar Council, because the state bar councils are going to administer this fund. 20% of the enrollment fee. This is an experiment they've had in the state legislations also. It has not exactly been a failure as far as those contributions are concerned. The administration of this fund is essentially by those committees where the bar councils are in fact overrepresented. There are voluntary contributions which would be voluntary. I quite appreciate the suggestion Mr. Nariman has made. There is an provision, enabling provision, that donations can be made, contributions can be made by other sections, including governments, but that's only an enabling provision. But the other three principal sources, one being the bar councils, the other being the annual the admission fee, the annual membership, and most important, the recurring income, which will be the largest source of the income from the welfare stamps itself. Now, with regard to the welfare stamps, there is already a provision that the amounts could be increased. There is an upper cap of rupees 25 mentioned by the governments, depending upon how much money is required, so we don't have to come back to Parliament. The Parliament, in fact, delegates that authority to the appropriate government. Initially, it is 5 rupees in every district court. And therefore, when we understate the figures, we also must keep in mind the volume of cases in the district court. The annual filing in the district courts across the country is almost 1 crore of cases. And therefore, 5 rupees on either side itself is an annual corpus from the district court of an amount which could be as high as 10 crore of rupees. For all other authorities, Mrs. Dubey mentioned that what about wakalatnamas in other authorities, it's all mentioned. All other authorities, High Court, Supreme Court, where also there are a large number of cases, the amount is rupees 10, so 10 by either side. The corpus, therefore, is a reasonable corpus. If it is insufficient, there is a mechanism by which this could be increased.
Therefore, if the corpus across the country is several crores of rupees every year, it is this money which is then to be invested into various welfare schemes, insurance schemes, etc. And what is the amount that the lawyers would be entitled to? You mentioned that wakalatnamas will be filed by both sides. Is it the government's position that when the government defends a litigation or moves a court, government too, along with all individual officers on behalf of whom the separate wakalatnama is filed in each wakalatnama, will buy a If my stamp learned worth friend has rupees any 10? suggestion, we'll certainly look into that question. Yes. If No, my because learned that's friend has very any- important from the point of view of the fund. Yes, I quite appreciate the suggestion which my learned friend is making. We will quite take those suggestions into mind. But therefore, the quantum from this fund, which is to be contributed by lawyers itself, is not restricted to the 200 active practitioners of the Supreme Court. The illustration Mr. Sibal gave, but the amounts could be reasonable. In fact, the Kerala experiment, which was given, and Kerala is one of the states where it has been extremely successfully implemented. And successfully implemented on these kind of amounts, invested over a period of time, the welfare fund has been well governed, where people, as he said, at the end of their practice, are getting larger amounts itself. As far as the benefit schemes are concerned, it is not confined to the 30,000 mentioned in the schedule alone. That 30,000 is only a token amount. Section 19 is a case which deals with various kinds of illnesses, sicknesses. 21 deals with cessation of practice. For whatever reason, the amounts that you are entitled to, that amount is a token amount that's mentioned in the schedule. Depending upon the large corpus available, that amount can also be increased. The schedules are amendable by the appropriate government itself. If in a given state the amounts available, the corpus available is larger, that amount itself can be raised. I have a list of at least 8 states. We have taken, in fact, the case study of all the states, and most of the states mention the amounts mentioned in this schedule itself. And then section 24, which is the principal amount, and the object and the suggestion which Mrs. Dubey made. What about women? Supposing a maternity, a lady lawyer is out of practice for a couple of months on account of maternity absence, itself has a provision in section 24. It provides for group insurances, it provides for medical, educational facilities of dependents. Any scheme which is framed by the state committee, it is those committees which frame the scheme with the states, the trust committees, and these will be all factors which those committees will have to take into consideration. There is also a facility as far as help to young lawyers for books is concerned. For common amenities is concerned, 10% of the fund is to be earmarked. Particularly, somebody said the high courts and the Supreme Court have better amenities. What about subordinate courts? It's meant exclusively for subordinate courts. And all other schemes, including benefits which are to be given in the event of death to the dependents, are all within subclauses E and F. That is how it has been operated upon in the various states, that in the event of death, whatever is the residual fund, how it is operated upon through insurances and through other corpuses available with this trust committee is available there. Therefore, the different kinds of payments which would be available are in the event of sickness, in the event of cessation of practice, in the event of medical benefits, purchase of books, common amenities, death and other schemes which are formulated by the state committees. But as Mr. Sibal and others rightly mentioned, this would essentially depend on what is the size of the corpus which is available, and the size of corpus available, considering the number of the voluminous number of litigations in this country, is expected to be reasonable to start off with, and ultimately we have the flexibility of increasing those amounts if we find that a further amount itself is required. Madam, several other suggestions were made. Yeah, what about the crashes also she mentioned regarding the lady lawyer? But that's all, that will all be a part of the, because the authority is with that state level committee, and each state level committee, madam, the composition itself is essentially lawyers. The Advocate General will be the chairman of the committee. The government of the state government has only 2 officers, the Law Secretary and the Home Secretary, the chairman of the Bar Council, the government pleader, 2 advocates nominated by the Bar Council, the secretary of the Bar Council. There would be at least 4 representatives of the Bar Council, plus the Advocate General, government pleaders who would constitute this body. They are the ones who are going to administer this fund. They are the ones who are going to sell these stamps, and to whom the corpus of all these stamps, etc., would be available. So, I am sure some of them would be women also. But these crashes, can't the courts provide these crashes where there are more women, as in the as they have in the companies where there are certain number of women employees?
then it is compulsory for them to have creches. But You can consider this in It's future. a suggestion which, Ah. it's a suggestion which merits consideration. Therefore, madam, the question with regard to desirability of this fund, it's a social security scheme, there would be a reasonable corpus, and then it essentially depends on how it is administered and how we are able to increase these amounts itself. Some other suggestions were made with regard to the senior advocates itself. I may explain, since it's a question which was specifically raised. One suggestion has been made that why should the affluent section amongst the advocates be entitled to the benefit of the social security? Therefore, when a meeting was held with the Bar Council of India and various representatives of bar associations, a suggestion which emanated from them itself was, could this section be excluded? And therefore, it was mentioned that they pay an amount of 1,000 rupees because that's an amount which is very nominal for them every year. They are excluded from section 19, section 21, and from 3 of the provisions of section 24, but they are entitled to the benefits of the collective provisions of section 24 as per the schemes which will be framed. So the exclusion is with regard to 3 clauses of section 24 and not with regard to the other 3 clauses of section 24, and it is for that benefit that they are expected to pay an amount which is in fact a very small amount considering the section of senior advocates itself would not mind paying this. Mr. Nariman's suggestion is that they would probably be willing to pay much larger amounts itself. A suggestion was made to include bar associations into this committee. We have specifically considered it. It has also been considered in the states. We found it difficult to include that suggestion for the reason that there are in several states hundreds of bar associations. You have the Bar Association of the High Court, each district has a bar association, each income tax bar has a bar association, the sales tax lawyers have a bar association, each bar has a bar association. Therefore, if you started searching for which one to include, we'll run into a lot of difficulties. These are all voluntary bodies, and therefore to confine it to the statutory body called the Bar Council of the state probably was considered more appropriate because the Bar Council covers everybody, and that is why all those lawyers who are members of bar associations are also members of the Bar Council itself, and that is why the bar associations have been kept out. We really didn't want to allow anybody to pick and choose which bar associations to be brought into this. Madam, it is with this objective that this legislation has been brought. I am extremely grateful to the honourable members for the very valuable suggestions they have given, and I commend to this honourable House that this law be accepted. Thank you. Now, after the minister has promised a lot of things and explained a lot of things, I hope he'll consider these things in his, when it applies to the bill, will it put the question. The question is that the Advocates Welfare Fund Bill 2001 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill, clause 2 to 238. The first schedule and the second schedule stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 38, the first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula are adopted. Arun Jaitley ji. Well, I move that the Advocates Welfare Fund Bill 2001 be adopted by this honourable House. Motion moved that the bill be passed. The question is the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Bill is passed. Thank you. Now we have short duration discussion which was to start at 4 o'clock. Now it is 2.5 hour discussion. It will be, yes, Mr. Pachori. It is short duration discussion. He will raise it. महोदया, जिस देश में लगभग 30% लोग गरीबी के रेखा के नीचे रहते हों, तो वहाँ निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है।
क्योंकि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है जो गरीब और मजदूर लोगों को बढ़ती हुई महंगाई और मुनाफाखोरी से मुक्ति दिला सकती है तथा आम आदमी के उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका बाजार में जो कृत्रिम अभाव होता है और बेतहाशा कीमतों में जो वृद्धि होती है उस पर अंकुश लगाने का काम भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किया जा सकता है। महोदया, करोड़ों टन अनाज हमारे देश में उपलब्ध है। मान्यवर, करोड़ों टन अनाज हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन उसको रखने की हमारे यहाँ जगह नहीं है। लगभग 8 करोड़ लोग भूख की चपेट में आए दिन आते रहते हैं, या उनको इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो रिसर्च ब्रांच है उसके हिसाब से जितना खाद्यान्न मिलना चाहिए उतना खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो एक तरफ तो हमारे देश की यह दर्दनाक तस्वीर है और दूसरे तरफ हमारे देश की केंद्र सरकार है जिसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसके जो भी दावे किए गए वो सारे के सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल में जो व्याप्त दोष हैं उनको दूर किए जाने पर विचार किया जाए, ताकि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उस गरीब वर्ग को पहुंच सके जिसके हितों को दृष्टिगत रखते हुए यह सिस्टम ईजाद किया गया है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने 2001 का बजट करते हुए बहुत कुछ घोषणा की थी। कहा था कि आयकर दाता और उसके परिवार को चीनी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि 7.65 करोड़ व्यक्तियों को चीनी के लाभ से वंचित कर दिया गया। मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता हूं, लेकिन आए दिन इस सरकार में जो राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति को लेकर आपाधापी चलती रहती है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इस प्रणाली के बारे में इस देश के वित्त मंत्री का कुछ और सोच और केंद्रीय खाद्य और वितरण मंत्री शांता कुमार जी का कुछ और सोच, और ये चूंकि परस्पर एक दूसरे का विरोधी सोच है, उसका परिणाम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जिस गरीब वर्ग को पहुंचना चाहिए उस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। स्थिति तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जिस चावल को भेजा जाना चाहिए वो चावल नहीं भेजा जाता है, वहां गेहूं भेजा जाता है, और चूंकि गेहूं वहां के लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसकी परिस्थिति ये होती है कि उस गेहूं को फिर दिल्ली में बेचा जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि वो राज्य उठा नहीं रहा है और उस राज्य के लिए जो आवंटित खाद्यान्न है वो दिल्ली में बेचा जा रहा है। तो ये जो नीतिगत निर्णय हैं इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ खामियां हैं। खुद शांता कुमार जी का राज्य हिमाचल प्रदेश, उसमें गरीबों के लिए 3.5 हजार टन अनाज में से सिर्फ 3,800 टन ही उठाया गया है। ये जो स्थिति है वो टेक ऑफ की स्थिति है। अब प्रश्न उठता है कि ये कमी क्यों है, इसके लिए दोषी कौन है। फूड ग्रेन ऑफटेक जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, उसमें लगातार कमी आती जा रही है, और उस कमी का परिणाम ये है कि लगभग 35% कमी इस वर्ष के करंट क्वार्टर में आ गई। इसके लिए दोषी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज है वो इस वर्ष के अप्रैल से ये हटा ली। तो ये जो वीट का टेक ऑफ है, शुगर का जो ऑफटेक है जो बिलो पावर्टी लाइन के लिए है, उसमें लगातार कमी आती जा रही है,
जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। मान्यवर, हमारे देश में राशन की लगभग 45 लाख दुकानें हैं। 45 लाख दुकानों से ये उम्मीद की जाती है कि इस देश में रहने वाले लगभग 19 करोड़ परिवारजनों को सामान्य उपभोक्ताओं की वस्तुएं जो उनके रोज के उपयोग में आने वाली हैं उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन स्थिति क्या है, वो वस्तुओं की पूर्ति उनके लिए नहीं हो पा रही है और इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार न केवल अलग अलग सुर में बात कर रही है, बल्कि स्थिति ये है कि घोषणा तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन उसका किसी न किसी रूप में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। स्थिति ये है कि देश के जो बड़े भारी भूभाग हैं उसमें एक तरफ तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो अनाज का भंडारण, जो अनाज का संग्रह किया गया है, एक तरफ तो अनाज सड़ गल रहा है और दूसरी तरफ लोग भूख के शिकार हो रहे हैं, मौत के शिकार हो रहे हैं। और अगर हम राजनीतिज्ञ लोग कोई इस मामले में बात करें तो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा या माना जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है वह बहुत चौंकाने वाला है। मान्यवर, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि देश में भूख और कुपोषण से हो रही मौतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर खास तौर पे 6 राज्यों में पड़ा है और इस सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की भूख की वजह से मौत ना हो पाए। सरकार अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य भूखों को अनाज देना है। उसे यह देखना होगा कि एफसीआई में गोदामों में पड़ा अनाज सड़ने के बाद समुद्र में फेंके जाने या चूहों को खिलाए जाने के बजाय जरूरतमंदों को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की यह व्यवस्था दी जाना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है और यह व्यवस्था किसी एक माननीय जज ने नहीं दी है, 3 जजेस की जो बेंच है उसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई है। मान्यवर, और तो और जो इस सरकार के महाधिवक्ता हैं सौली सौरभ जी, उन्होंने भी स्थिति को भयावह मानते हुए इस चीज को स्वीकार करते हुए ये कहा कि व्यवस्था में किसी बुनियादी गड़बड़ी का जरूर कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिलता है और इस दिशा में अंतरिम निर्देशों का ब्यौरा जल्दी देने के लिए सौली सौरभ जी ने यह कहा कि वो जल्दी ही इस विषय में सरकार का पक्ष रखेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई और यही वजह है कि इस विषय में जो पीआईएल दाखिल की गई थी वो उस याचिका पर सुनवाई अगली 3 सितंबर तक के लिए नियत कर दी गई है। ये निश्चित रूप से बहुत बहुत भयानक ऑब्जर्वेशन एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो मैं ये कह रहा था कि जहां एक तरफ सौली सौरभ जी ने इन विसंगतियों को स्वीकार किया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, तीसरी तरफ ये स्थिति है जो हमारी भारत की तस्वीर का मैंने जिक्र किया है कि एक तरफ तो करोड़ों टन अनाज पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वही करोड़ों टन अनाज एफसीआई के गोदामों में सड़ रहा है और तीसरी तरफ 6-7 राज्य में स्थिति सूखे की है, भूखे की स्थिति है और लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय मंत्री जी ने घटिया राशन आपूर्ति के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारों को बना दिया। ये घटिया राशन कहां से लिया जाता है? फूड कॉरपोरेशन से लिया जाता है। फूड कॉरपोरेशन किसके अंडर है, किसके अधीन है? इसके लिए जिम्मेदारी से पलायन माननीय मंत्री जी करें और दोषारोपण राज्य सरकारों को दें, तो मैं ये सोचता हूं कि यह ठीक उसी प्रकार से है जब कोई भला आदमी अपनी जिम्मेदारी से को न निभाते हुए एक पलायनवादी कदम उठाता है और दोषारोपण किसी और पर करता है। आज देश में भूखे की स्थिति है, आज चारों तरफ कई प्रदेशों में सूखे की स्थिति है, कहीं बाढ़ की स्थिति है, लोग राशन के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राज्यों पर ये दोषारोपण करें तो मैं सोचता हूं कि ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। क्योंकि राज्य की बात आई है, मैं अपने राज्य की बात पर आता हूं। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि जितनी शक्कर मांगी गई थी
वर्तमान संख्या के आधार पर उतनी शक्कर का कोटा दिया नहीं गया। कहा जाता है कि लोग ऑफटेक नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से है जैसे हिमाचल है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? मार्केट प्राइस की क्या स्थिति है? खुले बाजार में जिस दाम पर आप खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं उससे सस्ते दाम में वो जब मार्केट में मिलता है तो जो उपभोक्ता है वो क्यों लेंगे और कोई भी सरकार क्यों उठाएगी? इसलिए ऐसी नीति निर्धारित किए जाना आवश्यक है कि सस्ते दामों पर, सुलभ दामों पर लोगों को, आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाए और उनमें किसी प्रकार की मिलावट भी ना हो। स्थिति यह है कि मिलावट वाली चीजें भी मिल रही, और तो और मिलावट वाली चीजों के अलावा फूड कॉरपोरेशन से जो चीजें उठाई जाती हैं, जिस मात्रा में उठाई जाना चाहिए उसमें जब तोल करते हैं मान्यवर, उस तोल में भी कमी रहती है। मान लीजिए 1 क्विंटल का 1 बोरा है, जब वो वहां जाके तोला जाता है तो वो 99 किलो का निकलता है। तो एक तरफ तो मार्जिनल प्रॉफिट देखता है राशन की दुकान वाला और दूसरी तरफ वस्तु स्थिति यह है उस तौल में भी कमी है। इस दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दोषी कौन है? इसके लिए तो राज्य सरकार दोषी नहीं हो सकती। मैं अपने राज्य की मानवर बात कर रहा हूं। हमारे राज्य में स्थिति यह है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5-6 गांव में एक राशन की दुकान खोल ली जाए और इसके लिए उन्होंने ग्रांट सरकार से मांगी। कई बार ज्ञापन दिया है और 5 लाख टन खाद्यान्न की मांग की है, उसकी तरफ अभी तक कोई कदम इस सरकार ने नहीं उठाया है। और दूसरी तरफ हम दोषारोपण राज्य सरकारों को कर रहे हैं। ग्रेन बैंक का प्रपोजल सरकार ने को दिया गया है, लेकिन वर्किंग ग्रुप की इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट तो कर दिया, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है और इसलिए राज्य सरकार ने जो ग्रेन बैंक का प्रपोजल दिया था उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। शक्कर का जितना कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। केरोसिन, जिसको आदिवासी इलाके में उपयोग में करते हैं, केरोसिन का कोटा नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान संख्या के आधार पर अगर अनुपात हम दूसरे राज्यों का देखें तो वो जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसको दृष्टिगत रखते हुए जितना केरोसिन मिलना चाहिए वो केरोसिन का कोटा भी नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति राज्यों की बनी हुई है। तो मैं ये आपके माध्यम से, जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो रही है, तो ये कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों ने इस आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजों के लिए जितनी मांग की है, उन मांगों की पूर्ति की जाना समय के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना स्थिति ये होती है कि एक तरफ गोदामों में अनाज अपच स्थिति में पड़ा हुआ है, उसकी हालत यह है कि उस एक तरफ तो उससे निजात पाने के लिए हमारी तरफ से कोई उपाय नहीं किए गए और दूसरी तरफ लोग भूखमरी और कुपोषण के शिकार हों, तो ये निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर संकेत देते हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को अपनी खरीद नीति में, सरकार को अपने भंडारण में, उसकी व्यवस्था में और जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें किसी न किसी रूप में सामंजस्य और तालमेल बिठाए जाने की आवश्यकता है। मैंने जैसा कहा कि आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम जो फैसले लें केवल उन फैसलों की घोषणा करें। आज आवश्यकता इस बात की है जो फैसले हम लें उन फैसलों पर हम क्रियान्वयन करें। खुद जैसा कि मैंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में सरकार को हर साल 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना पड़ती है और एक तरफ वह सब्सिडी की व्यवस्था में सुधार करने की बात करती है और दूसरी तरफ वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की बात करती है। स्थिति यह है मान्यवर, जैसा मैंने प्रारंभिक बात में कहा, हमारे देश में लगभग 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं और 50% उनमें से ऐसे हैं जो महंगाई की मार की वजह से नित्य प्रतिदिन ऐसी जीवन शैली का शिकार होते हैं जिसका जिक्र मैंने यहां किया है। स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाके में, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में राशन की दुकानों की कमी। खुद मंत्री जी ने इस सदन में जब उत्तर दिया था तो इस चीज को स्वीकार किया था कि पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में
जितनी राशन की दुकानों की आवश्यकता होनी चाहिए, जितनी संख्या होना चाहिए, वो पर्याप्त संख्या नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर जब हो सकती है जब हम उस संख्या पर ध्यान दें, और न केवल हम राशन की दुकानों की संख्या पर ध्यान दें, बल्कि उन राशन की दुकानों के जरिए जो उपभोक्ता की वस्तुएं वितरित की जाएं वो न केवल शुद्ध रहें, न केवल पूरी रहें, तौल में कमी भी ना हो, और इसके साथ उसकी जो कीमत है वह भी सही मिले। होता यह है कि राशन की दुकान वाले और बिचौलिए और व्यापारी आपस में मिल जाया करते हैं। जो राशन कार्ड है नकली राशन कार्ड बन जाया करते हैं। उन नकली राशन कार्डों के जरिए एंट्री हो जाती है और कह दिया जाता है कि गरीबों के लिए जो योजना बनाई गई थी उस योजना का लाभ इतने लोगों को पहुंचा, और जबकि वो जो हम घोषणा करते हैं, वो जो हम लोगों को सूचना देते हैं, वो राशन कार्ड पर जो एंट्री होती है उसके आधार पर देते हैं। हमारी सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राशन कार्ड के जरिए जो लोगों को सामान दिया गया है वो सही और वाजिब लोगों को दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है जिनके लिए वो स्कीम बनाई गई। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पंचायत के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पंचायतों के चुनाव नहीं है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन राज्यों में पहल करें कि वहां पंचायत के चुनाव हों। गरीबों को यदि हम केवल राशन की दुकान के भरोसे छोड़ दें, गरीबों को केवल हम केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भरोसे छोड़ दें, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मैंने तस्वीर अभी प्रस्तुत की है, स्थिति यह होगी कि उन गरीबों की कमर टूट जाएगी, वो गरीब लोग और भुखमरी के शिकार होंगे। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मान्यवर, स्थिति यह है कि हमारे देश में विदेशों से जो खाद्यान्न है वो सस्ती कीमत पर आयात हो रहा है। हमारे देश में जो खाद्यान्न है यहाँ की गोदाम में सड़ रहा है, विदेशों से सस्ती कीमत पे आयात हो रहा है। और स्थिति यह है कि जो उर्वरकों की बढ़ाई हुई कीमत है, जो सब्सिडी के मामले में इस सरकार ने जो निर्णय लिया है, उससे किसान की कमर जो है वो टूटती जा रही है। निश्चित रूप से वो सब्सिडी के मामले में हम लोगों को विचार करना चाहिए। मैं केवल एक बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शक्कर जो इंपोर्ट की गई, सरकार की क्या नीति रही? केवल सरकार की जो आयात नीति है वो इस बात को दृष्टिपात करेगी। अप्रैल 99 में जो कस्टम ड्यूटी थी वो 0 थी। अप्रैल 99 के बाद 5% कस्टम ड्यूटी जो है वो तय की गई। जनवरी 99 के बाद 28 फरवरी 99 में जब बजट था तो 25% कस्टम ड्यूटी और 10% सरचार्ज बढ़ाया गया। उसके बाद दिसंबर 99 में 40% कस्टम ड्यूटी हुई। 9 फरवरी 2000 में 60% कस्टम ड्यूटी हुई और 28 फरवरी 2000 में 100% कस्टम ड्यूटी हो गई। अगर ये कस्टम ड्यूटी शुरू में ही बढ़ाई दी जाती तो जो शक्कर आयात हुई और हमारे देश में गन्ना सड़ा, हमारे देश में लोगों ने गन्ने की फसल करने वाले किसानों ने अपना गन्ना खेतों में जला दिया, वो स्थिति नहीं होती। यहां तक कि हमने पाकिस्तान तक से चीनी बुला ली और उससे जो आमदनी हुई वो आमदनी का उपयोग उनके जो जवान हैं उनके कोष में किया गया। वो जवान जो हमारे देश के जवानों पर आक्रमण कर रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया से हमने लाखों टन गेहूं बुलाया। ये हमारी देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे यहाँ जो आयात व्यवस्था है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वो प्रतिबिंबित करती है। मान्यवर, अभी हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैंने अपनी जब बात प्रारंभ की थी तो माननीय जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था उससे की थी, और मैं जब बात कर रहा हूं उसके मध्य में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या ऑब्जर्वेशन है इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह कहा है कि इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त खामियां हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस प्रणाली को दी जाने वाली सब्सिडी जो है 2800 करोड़ से बढ़कर 1998-99 में
8,700 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन इससे समाज के उस वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा जिस वर्ग को अपेक्षित लाभ पहुंचना था। ये कैग रिपोर्ट ने आगे और कहा है कि न केवल इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली जिंसों की क्वालिटी घटिया होती है, बल्कि सप्लाई किए गए गेहूं, चावल और चीनी को 1/3 तथा खाद्य तेलों का आधे से अधिक हिस्सा खुले बाजारों में चोरी से बिकता है। ये कैग रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन, यही कैग रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि समूचे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो लगभग 30% हैं, उनमें से 18% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और इस कारण वे पीडीएस की सुविधा से वंचित हैं और सरकार के आंकड़े उन राशन कार्डों को बताकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुहाई देते हैं। ये कैग का ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन किन्हीं राजनीतिक या राजनीतिक दल के लोगों का नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का है और दूसरी तरफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है, जिसकी नियुक्ति इस सरकार ने की। ये निश्चित रूप से मान्यवर बहुत गंभीर बात है। सरकार के सामने बहुत कुछ समस्याएं हैं, उसमें खाद्यान्न से संबंधित जो बात है, इस वितरण प्रणाली से जो संबंधित बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात भंडारण की। हमको ये देखना होगा। आपका 35 मिनट समय है, उसमें 2 स्पीकर है, अभी 22 मिनट आप बोल चुके हैं। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। मान्यवर, एक तरफ किसान पूरी मेहनत करके फसल उपजाता है, उसको वाजिब दाम नहीं मिलता है, उसके लिए श्रेय किसानों को देना चाहिए, लेकिन उस किसान का अनाज जब इस सरकार के द्वारा बनाई गई फूड कॉरपोरेशन की गोदामों में सड़ जाए, गल जाए, तो निश्चित रूप से उसके लिए किसी न किसी रूप में दोषी इस सरकार को माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और इसलिए जब ये बात आती है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा न करे, बल्कि उन जनहितकारी योजनाओं पर अमल करे और उसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जाने की जरूरत है और देखे कि जो नीति बने वो जनोपयोगी हो, वो जो नीति बने वो केवल शहरों तक सीमित ना हो, बल्कि उन दूर दराज गांवों तक भी सीमित हो जहां राशन दुकानें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, उस नेटवर्क पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, जो नेटवर्क जो गठजोड़ चंद व्यापारियों की, ब्लैक मार्केटियर्स की और राशन की दुकान के जरिए अपना व्यापार करने वालों की बनी हुई है, उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। सरकारी गोदामों से भी लोग, जैसा मैंने बताया, कि सही माल मिल पाए, ये देखा जाने की जरूरत है। जो ब्रांड का सामान मिलना चाहिए, वो ब्रांड का सामान भी सरकारी जो दुकान है, राशन दुकान, उनको उपलब्ध किया जाना चाहिए। जैसे 12 आइटम आपने सिलेक्ट किए, खाद्य तेल हैं, टूथपेस्ट हैं और इसके अलावा ऑयल है, सिर में लगाने वाला ऑयल है, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिस ब्रांड का लोग उपयोग करते हैं, वो ब्रांड का ही लोगों को सामान मिल पाए। होता क्या है, हम घटिया स्तर का सामान उपलब्ध कराते हैं और उसकी स्थिति ये है कि जो लोगों को उपयोग में आने वाली चीजें हैं वो फिर लोग नहीं खरीद पाते हैं और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वो लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है और इसलिए स्थिति ये हो जाती है कि आम आदमी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कई प्रश्नवाचक चिन्ह करने लगता है। मान्यवर, 2-3 बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस सरकार के रहते जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हालत हुई है, इन्होंने कहा कि जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनको हमने जो राशन की मात्रा है वो बढ़ा दी है। बात ठीक है, लेकिन उसकी कीमत क्या हो गई है? उसकी जो कीमत है, मान ली वो 4 रुपए 20 पैसे हो गई है वीट के लिए पर किलोग्राम। पहले इसकी कीमत जो थी वो 2 रुपए 50 पैसे थी और राइस की कीमत क्या हो गई है? 5 रुपए 85 पैसे, जो पहले कीमत थी 3 रुपए 50 पैसे। तो एक तरफ कीमत में बढ़ोतरी कर दी है और आप कह रहे हैं कि 10 किलो के बजाय हम 20 किलो अब गरीब लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो बढ़ी हुई कीमत पर कौन ले पाएगा? ये एक विचार करने वाली बातें हैं।
इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त हो और उसके लिए समय रहते सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसे नीतिगत निर्णय ले जिससे कि जो जवाबदेही है वो उन लोगों पर दे सके जिन पर कि हमेशा इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, और न केवल जिम्मेदारी दी गई है बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम गरीब इंसान को उसके उपयोग में आने वाली वस्तुएं सही दाम पर सही स्थिति में पूरी मात्रा में मुहैया हो सकें, यह सुनिश्चित करने का काम जब ये सरकार करेगी तब हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन संजीदगी से कर रही है। अभी स्थिति ये है कि न केवल ये सरकार पलायनवादी कदम उठा रही है बल्कि दोषारोपण एक दूसरे को कर रही है। दोषारोपण भी करें उससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज इस बात का है कि जिन गरीबों को अनाज समय पर मुहैया होना चाहिए, जिन गरीबों को उसके आम उपयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाना चाहिए वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो उपलब्धता समय पर कराई जाना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। श्री विक्रम वर्मा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में खाद्यान्न वितरण को लेकर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता और उसके पुनरुद्धार के बारे में जो चर्चा अभी प्रारंभ हुई है और जिन सारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा की मांग की है, भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से इसके माध्यम से जो करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े हुए विषय पर हम चर्चा कर पाएंगे और उसमें माननीय सदस्यों की जो चिंता है मैं उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। लेकिन इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हम केवल केंद्र सरकार की आलोचना और उसी को लक्ष्य करके चले तो इससे ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था में दोष उत्पन्न हुए, इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें अनेक कमियां आ गई है, नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार है, इस बात को स्वयं अभी माननीय सदस्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और एक प्रकार से इसकी विश्वसनीयता और कहीं कहीं योजना की उपयोगिता में भी प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें अफरा तफरी है नीति में, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये नीति कब से चल रही, कोई आज से तो लागू नहीं हुई है, बल्कि समय समय पर इसमें सुधार किए गए हैं। अभी इनका कहना था कि वित्त मंत्री जी अलग विचार करते हैं और माननीय खाद्य मंत्री जी का अलग विचार है और इसके कारण इसमें कटौतियां हुई है, कमियां आई है। लेकिन आप स्वयं देख लें कि इसमें जो धीरे धीरे एनुअल फूड सब्सिडी फ्रॉम ₹2,450 crores in 1991 to ₹9,200 crores in 99 and to 13,000 crores in 2001 and 2001, यानी धीरे धीरे इतना इंक्रीज हुआ है। यदि अफरा तफरी होती, योजना में कमी होती, योजना में कटौती कर दी गई होती, योजना बंद कर दी गई होती, तो फिर आप बताइए कि आखिर इतने करोड़ की सब्सिडी जो 2,450 करोड़ से और प्रारंभ होकर आज होते होते आज ये 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आखिर इस सारे खाद्यान्न वितरण सार्वजनिक प्रणाली पर ही खर्च हो रही। और इसी से ये बात सिद्ध होती है कि दृढ़ता के साथ ये सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इसका पालन कर रही है। और इस देश के अंदर जो करोड़ों लोग, जो इसमें लगभग 36 करोड़ के आसपास जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, वो बराबर इसका लाभ उठा रहे। अब वास्तव में यदि नहीं मिल पाता उसके कारण कहीं नीचे की थोड़ी कमियां होगी। माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के बाद के निश्चित रूप से गंभीर विषय है। आज अनेक देश के अनेक हिस्सों से इस प्रकार की खबर आती है। अभी छत्तीसगढ़ में 12-15 आदिवासियों की मौत हुई क्योंकि उन्होंने एक मृत पशु खाया, उन्होंने गाय मरी हुई खाई। उस गाय को कोरवा जाति के जो हमारे यहाँ जिनके बचाने के लिए यहाँ से पैसा जाता है, उनके लिए अलग से उन आदिवासियों की विलुप्त होती प्रजाति है, लेकिन उन्होंने मृत गाय का मांस खाया क्योंकि भूख के कारण उनकी यह हालत हो रही थी छत्तीसगढ़ में। और उस गाय को एक पागल कुत्ते ने काटा था, इसलिए पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग, और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वो मरे। अब ये इस प्रकार की खबरें जिस प्रकार के राज्यों से आती है, तो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं है। यदि ये ऑब्जर्वेशन है तो पूरे सिस्टम पर ऑब्जर्वेशन है, और यदि सिस्टम पर ऑब्जर्वेशन है
तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम नीचे जहां वितरण प्रणाली है वहां इसकी कमियों के कारण ये परिस्थिति आती है। यदि अलॉटमेंट में कमी हो, कोई अलॉटमेंट कटौतियां कर दी गई हो कि यहां से केंद्र से ही नहीं जा रहा हो, तो एक बात है। आखिर भूखमरी है, गोडाउन भरे हैं, अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट नहीं उठाया जाए, वितरण पर्याप्त नहीं हो, जो उपभोक्ता है उसको नहीं मिल पाए, उसके राशन कार्ड पे कोई दूसरा उठा के ले जाए, ब्लैक मार्केटिंग हो, तो निश्चित रूप से इट इज ए फेल्यूर ऑफ द सिस्टम द लोअर लेवल, एकदम नीचे के लेवल पर उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को और देखना पड़ेगा। माननीय पचौरी जी का कह रहा था कि मध्य प्रदेश में केरोसिन का कोटा जितना है उसके हिसाब से नहीं मिलता है। आप जरा फिगर्स देखें, जो अलॉटेड है उतना भी नहीं उठाया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मैं अभी एक लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में भी आगे रेफर करता हूं कि जितना अलॉटमेंट दिया गया वही नहीं हो पाया। आपका कहना था कि खाद्यान्न आयात हो रहा है, चीनी के बारे में आपने उदाहरण दिया कि कस्टम ड्यूटी 99 में लगाई गई, यदि पहले लगा दी जाती तो चीनी का आयात नहीं होता। अब पहले किसने रोका था? WTO में कौन गया? अब आयात को आप रोक नहीं सकते, WTO के कारण आने वाले आयात को कोई आप रोक नहीं सकते बाहर से। आप ड्यूटीज लगा सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं, बाकी की ड्यूटीज लगा सकते हैं। और जब इस सरकार के ध्यान में ये बातें आई तो उसके बाद कस्टम ड्यूटीज बढ़ाना प्रारंभ किया। आपने स्वयं अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि सन 99 से 2000 और 2001 में 3 बार चीनी पर और बाकी के खाद्यान्न पर और एडिबल ऑयल पर जो बाहर से आयातित था, इन सब पर सरकार ने बराबर और इस प्रकार की आयात ड्यूटियां लगाई है। और इसलिए इसको रोकने की कोशिश की आयात को, ताकि हमारे यहाँ के और किसानों को भाव मिल सके। फिर आपका यह कहना था कि पहले फेयर प्राइजेस जो दुकानें हैं वहां पर कम कीमत में खाद्यान्न दिया जाता था, चूंकि अब महंगा हो गया इसलिए नहीं खरीदते हैं। अब ये बात जरूर है कि कीमतें बढ़ी है, लेकिन आपने एक पोर्शन तो बता दिया कि वहां पे अब जो उपभोक्ता को अनाज महंगा मिल रहा है, लेकिन किसान से खरीदी के बारे में आपने नहीं बोला। आज से 3 साल पहले किसान को क्या भाव मिलता था? मैं खुद एक किसान हूं, काश्तकार हूं, मुझे मालूम है कितने में हमको गेहूं बेचना पड़ता था। आज 650-670 रुपया पर क्विंटल आज गेहूं का खरीदी मूल्य इस बार था। और यही कारण है कि मंडियां व्यापारी खरीदने के लिए खड़ा रहता था, वहां पर गेहूं नहीं मिल पाता था और सारा का सारा लोग लाके और बराबर इस बात का दबाव देते हैं कि हमारा माल और हमारा गेहूं खरीदा जाए। तो आज जब खरीदी मूल्य बढ़ गया है, हमने उसको 300-350 से बढ़ाते बढ़ाते और आज 650 पर ले गए हैं। ये 300 रुपया पर क्विंटल की जो बढ़ोतरी हुई है, तो आखिर वितरण में रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए कुछ तो आखिर कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। और इन सारी परिस्थितियों का हमको ध्यान में रखना होगा। माननीय स्वाति जी, माननीय कल ये जो मंत्री जी ने कहा था, कल फूड कॉर्पोरेशन के संशोधन में बात आई थी कि भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उसे केंद्र सरकार पीछे नहीं हटती। उनकी जिम्मेदारी है अनाज की खरीदी करना किसान से, उसका संग्रहण करना, उसको वेयर हाउसिंग और उसमें भंडारण में उसका रखना, सुरक्षित रखना, उसका परिवहन करना और खाद्यान्न के कोटे का राज्यों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से और आवंटन करना, यह केंद्र सरकार का काम है। आप अपने सारे डिस्कशन में यह बात कहीं बताएं कि केंद्र अपनी चारों जिम्मेदारियों से पीछे हटाओ। खरीदने का सवाल था, जहां जहां भी जिन राज्यों ने मांग के बराबर, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो, बराबर खरीदा गया है। और इसी प्रकार वितरण का प्रश्न है। अब ये मालूम है, कल माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जितना खरीदा है, आज 6 करोड़ 16 लाख टन गेहूं आज उपलब्ध है। इतना सब कॉर्पोरेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इतने हैं नहीं, इतने गोडाउन्स नहीं है, और इसलिए खुले में लेकिन सुरक्षित तरीके से रखते हैं। फिर भी कुछ परसेंटेज खराब होता है, और ये कोई अब खराब नहीं हो रहा है, बरसों इस प्रकार की प्रक्रिया चली है। और इसलिए ये परिस्थितियों को, वास्तविकताओं को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये कम मूल्य पर गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न वितरण कराने की एक वितरण प्रणाली है, एक व्यवस्था है, ताकि जो गरीब अफोर्ड कर सके उस कीमत पर वो उसको ले सके। लेकिन इस बात को भी हमको समझना होगा कि पूरी तरह से किसी सेक्शन की, किसी वर्ग की, या पूरी तरह से सब लोगों को संपूर्ण उनकी समग्र आवश्यकता की पूर्ति ये नहीं कर सकती। आखिर इसमें एक निश्चित मात्रा में पहले भी दिया जाता था। पहले तो 10 किलो दिया जाता था, 15 किलो दिया जाता था एक महीने में एक परिवार के हिसाब से। अब धीरे धीरे माननीय मंत्री जी ने उसको बढ़ाया है, धीरे धीरे उसकी, और पहले से व्यवस्था की, जैसे 10 किलो था, 10 को फिर 20 किया,
20 को फिर 25 किलो किया। इस प्रकार ये जो एक टारगेटेड पीडीएस स्कीम लागू की गई है, ये टारगेटेड पीडीएस स्कीम में जहां पहले निर्धन व्यक्तियों को और फेयर प्राइस शॉप से जहां 10 किलो प्रति परिवार प्रति माह दिया जाता था, 6 करोड़ परिवार 72 लाख टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष दिया जाता था, इसको 1/4/2000 से 20 किलो प्रति परिवार किया और 12 जुलाई 2001 से 25 किलो प्रति परिवार इस प्रकार से किया। प्राइजेस आपने बताई 4 रुपए 17 पैसे और 5 रुपए 65 पैसे, क्योंकि आखिर किसानों से जिस भाव पर माल लिया है उस सबको सब्सिडाइज करने के बाद में और इस प्रकार से दिया गया। 36 करोड़ लोग आज इस सबसे कवर होते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसके बाद में इसमें एपीएल के परिवारों का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंत्योदय अन्न योजना जो लागू की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2000 को इसकी घोषणा की थी, उसके बाद वो लागू की गई। 15-16 राज्यों ने उसको लागू किया है। 2 रुपए किलो में और एक परिवार को 25 किलो गेहूं दिया जाएगा। अब ये 2 रुपए किलो से 50 रुपए में यदि उसको सीधे सीधे एक महीने के लिए 2, 3 या 4 के परिवार के लिए आज उसको इतनी सहायता उससे हो जाती है, मात्र 50 रुपए में कम से कम वो 2/3 आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। लेकिन इसका भी इंप्लीमेंटेशन यदि नीचे के लेवल पर राज्य सरकारें नहीं करती है तो उसका दोष आप केंद्र सरकार को कैसे दे सकते हैं? उसके लिए माननीय खाद्य मंत्री कैसे जिम्मेदार हो सकते? आखिर इसके लिए इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता, इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता तो नीचे है और वहां हम यदि कोशिश करेंगे तो तब जाकर ये हो पाएगा। माने ये जहां तक है ये एक प्रकार से जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीडीएस सिस्टम किसी एक गवर्नमेंट का, केंद्र का या अकेले राज्य का विषय नहीं हो सकता। पीडीएस सिस्टम को ठीक करना है, व्यवस्थित करना है, ये आम लोगों को उसका लाभ मिल पाए तो ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा और उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि केंद्र की जिम्मेदारी क्या है, राज्यों की जिम्मेदारी क्या है, केंद्र अपने उत्तरदायित्व का वहन कितने प्रतिशत कर पाई है, कहां कमियां उसको सुझाव दिया जा सकता है और राज्यों की कहां कमियां हैं उनकी तरफ भी हमको इंगित करना पड़ेगा, ताकि सारे मुख्यमंत्रियों की या खाद्य मंत्रियों की बैठक में इस बात को करके उन कमियों की पूर्ति कराई जा सके, तब जाके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब आप यदि इसको देखें तो यदि वहां जाता है, आफ्टेक कल आया था, वह 3 करोड़ 33 लाख टन अलॉटमेंट पिछली बार किया माननीय मंत्री जी ने कल ही अपने जवाब में बताया, और उसमें से केवल 130 लाख टन ही राज्यों ने उठाया, मात्र 130 लाख टन। ये राज्यसभा में, अपने लोकसभा में इसमें क्वेश्चन आया है। ये 4 अप्रैल का एक प्रश्न है। 4 अप्रैल, ये 4 अगस्त 2000 का एक क्वेश्चन है और उसमें उन्होंने पूछा था कि whether a number of states have failed to lift the sizable quantity of food grains allotted under public distribution system, और उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह सरकार उन्होंने ब्रेकअप मांगा स्टेट वाइज। यदि आप ये स्टेट वाइज ब्रेकअप को देख लें और इसमें माननीय पचौरी जी मध्य प्रदेश के भी आंकड़े आप देख लें, चीनी का आप कह रहे हैं, केरोसिन का अलॉटमेंट मध्य प्रदेश को कीजिए, पचौरी जी को नहीं। अभी उनने माननीय सदस्य ने बोला था, तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप वो हमारा माध्यम से पचौरी जी को, मैंने माननीय मैं आपको संबोधित कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको कर रहा हूं। यदि आप केरोसिन का अलॉटमेंट देख लें और केवल एक ईयर का ही नहीं, आप ईयर वाइज देख लीजिए, अलग अलग स्टेट्स का देख लीजिए, फूड ग्रेन्स का देख लीजिए, राइस का देख लीजिए, व्हीट का देख लीजिए, केरोसिन का देख लीजिए, चीनी का देख लीजिए, जो अलॉटमेंट हुआ है वो अलॉटमेंट आप नहीं उठा पा रहे। केवल एक स्टेट नहीं, बहुत सी स्टेट्स है कि जो अपने को दिए गए उस अलॉटमेंट को ही नहीं उठा पा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप दोषारोपण करते हैं कि साहब इसके कारण से केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। अब हमारे यहां मध्य प्रदेश के अंदर ये जो सिस्टम है वह प्राइवेट शॉप्स नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय वर्षों से कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, माननीय सदस्य मैं आपकी अनुमति से नाम लूंगा, बैरागी जी खाद्य मंत्री रहे, उनको मालूम है, मध्य प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब आप कह रहे थे कि हमने केंद्र की सरकार से और 5-6 गांव के बीच में एक दुकान अलॉटमेंट करने के लिए और उसके लिए यहां से ग्रांट मांगिए, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज पिछले अनेक वर्षों से ये काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
वही जो आपने बताया, जिसकी तरफ आपने इंगित किया, मैं उस बात से सहमत हूं कि नीचे वो कहीं पूरी तरह से जिन उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए, जिनकी आवश्यकता है, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वहां नहीं हो पाता है और किसी न किसी लेवल पर कहीं गड़बड़ियां होती है, वो माल बाहर बिक जाता है और जिसके कारण से इस पूरे सिस्टम के फेल्योर की हम बात कर रहे हैं। हम मानते हैं इसमें कमी आई है, हम मानते हैं कि निश्चित रूप से इसकी है जो जिस और उसमें सफलता का आकलन होना चाहिए उस रूप में नहीं है, और इस असफलता को दूर करने के लिए कहां नीचे के स्तर पर कमी है, और इसलिए इसमें जो जो भी कमियां होगी उसको दूर करने की कोशिश करना पड़ेगी। अब हमारे यहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास अपने